God God grant us the serenity grant us the serenity grant us the serenity to to accept the accept the things we things cannot we change, cannot courage change, courage to change the things we can, to change the things we can, wisdom to know the difference. wisdom to know the difference. Ashwin ji, please mute all. नमस्ते दोस्तों, फिर मैं शुरू करता हूँ. A preamble. Alcoholics Anonymous is a fellowship of people who share their experience, strength, and hope with each other that they may solve their common problem and help others to recover from alcoholism. The only requirement for membership is the desire to stop drinking. There are no dues or fees for AA membership. We are self-supporting through our own contributions. AA is not allied with any sect, denomination, politics, organization, or institution. Does not wish to engage in any controversy, neither endorses or nor opposes any causes. Our primary purpose is to stay sober and help other alcoholics to achieve sobriety. ओके दोस्तों, आप सबका स्वागत है रिवाइवर ग्रुप की इस मीटिंग में, जो हम हर फ्राइडे रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक करते हैं. हमने पिछले मीटिंग में पिछले फ्राइडे को 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशन पे चर्चा शुरू की. उसपे हमने इंट्रोडक्शन और फॉरवर्ड पढ़ा. तो आज हम आगे का लेंगे. आज हम लेंगे स्टेप 1. तो मीटिंग का ऐसा होगा कि पहले मैं एक छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़ूंगा और भूषण और लकी जी उसको समराइज करेंगे और उस पे अपनी डिस्कशन करेंगे. मैं इंग्लिश में लूंगा. स्टेप 1. We admitted we were powerless over alcohol, that our lives had become unmanageable. Who cares to admit complete defeat? Practically no one, of course. Every natural instinct cries out against the idea of personal powerlessness. It is truly awful to admit that. Glass in hand, we have warped our minds into such an obsession for destructive drinking that only an act of providence can remove it from us. No other kind of bankruptcy is like this one. Alcohol now became the rapacious predator, bleeds us of all self-sufficiency and all will to resist its demands. Once its stark fact is accepted, a bankruptcy is as going human concerns is complete. Upon entering A, we soon took quite another view of this absolute humiliation. We perceive that only through utter defeat we are able to take our first steps towards liberation and strength. Our admissions of personal powerlessness finally turn out to be a firm bedrock on which happy and purposeful lives may be built. Thanks. Thank you. Over to you, Bhushan and Lucky. थैंक यू चंदू. दोस्तों, मेरा नाम पूषण है और मैं एक शराबी हूँ. हाय भूषण. हाय एवरीबॉडी. भगवान की बड़ी कृपा है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद. आज के दिन शराब के पहले गुड़ से दूर हूँ दोस्तों. मुझे याद है वो दिन जब भी मुझे एक रिहैब सेंटर में भर्ती करने के लिए लेके गए थे और वहाँ का एक काउंसलर था. वो मुझे पूछ रहा था कि जरा अपने बारे में इंफॉर्मेशन दो और मैं अपना बड़प्पन उसको बताना चाहता था. तो उसने मुझे पूछा, तो क्या पढ़े हो आप? तो मैंने बोला, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने मैनेजमेंट किया हुआ है. तो बोलता है, अरे अरे अरे. मैं बोले, अरे 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 क्या बोल रहा है? फिर बोलते, कहाँ नौकरी करते हो? मैंने कंपनी का नाम बताया, यहाँ यहाँ काम करता हूँ, ये पोजीशन पे काम करता हूँ. अरे 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 बोलता है. फिर तीसरा बोलता, रहते कहाँ हो? मैंने उसको बताया कि वो उन दिनों मैं अंधेरी जुहू एरिया में रहता था. तो मैंने बताया कि मैं जुहू एरिया में रहता हूँ. अरे 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 बोलता है. मैं बोला, अरे अरे क्या बोल रहा है यार? तो ही सेड के क्या है ये जो हम लोगों ने अलग अलग चीजें हासिल की हुई है,
हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारा पैसा, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा एजुकेशन, हमारा कंपनी में पोजीशन, हमारे हाथ के काम नीचे काम करने वाले लोग, ये सभी चीजें जो है ये हमारे ईगो का समर्थन करते हैं। और ये दीज आर योर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स, ये आपके शरणागति स्वीकारने में खड़े हुए सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स है। बोलता है ऑनेस्टली मुझे बताओ, आप ये मीटिंग में गए थे? मैं बोला हाँ गया था। वहां पर आपने किसी आपसे कम पढ़े लिखे लोगों को देखा? हाँ बोला सभी लोग वैसे ही थे। फिर आपके मन में क्या ख्याल है? मैं बोला कि पहला ख्याल ये आया कि हाउ कैन आई फॉल सो मच, मैं इतना कैसे गिर सकता हूं कि मुझे यहां पर आके बैठना पड़ेगा और इन लोगों से सुनना पड़ेगा। इनसे तो बेहतर लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, ऐसी स्थिति है। और ये लोग अभी मुझे बताएंगे कि मैंने शराब से दूर कैसे रहने का। बेसिकली अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो अपनी फैमिली, अपना समाज, अपने शिक्षक, सभी लोग हमारी खुद की एक अपने आप के नजर में इज्जत बनाने का प्रयास करते रहते। पैदा जिस घर में हुआ उस घर में हमेशा बोला जाता था कि पुशन तू इस घराने में पैदा हुआ है, हमारे यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं, तुझे भी पढ़ना लिखना है। तो वी जब भी मैं पैदा हुआ वो टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक नए मार्केट में से खरीद कर लाए हुए लैपटॉप के जैसा था। और फिर उसके ऊपर संस्कार होते गए। मेरे माँ बाप ने बताया कि तेरा घर ये है, तेरी जात ये है, तेरा पढ़ाई लिखाई ये है, तेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है। और मैं अपना ओपिनियन खुद के बारे में बनाते गया। फिर स्कूल में गया, तभी शिक्षकों ने सिखाया कि तेरे को अगर अव्वल नंबर आएंगे तो पहला नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा तो तू होशियार कहलाएगा, लास्ट में आएगा तो तू डफर कहलाएगा। जब एक खेल कूद के लिए गया, हर जगह पे जीतने के लिए ही लोगों ने पुश किया। आइदर आप पहले 3 में हो या तो आप नोबडी हो। तो मेरा समाज, मेरे दोस्त, मेरे मेरी फैमिली, सब लोगों ने मेरे ईगो का ही समर्थन किया। और जब भी मेरे को थोड़ी सी अकल आ गई और मैंने अपने आप से अपने दोस्त बनाने शुरू कर दिए, अपने आप से कुछ हासिल करना शुरू कर दिया, तो मेरा विश्वास और भी बढ़ गया कि सचमुच मैं अलग हूं। आई एम डिफरेंट। मेरे पास कुछ ऐसे गुण हैं, ये गुणों के बलबूते पर मैं कुछ खास व्यक्ति बन चुका हूं। अपने मैं चाहूं तो जो जो कितना भी मेरे परिस्थिति खिलाफ हो, मैं उसे हासिल कर सकता हूं। मेरा विल पावर काफी प्रबल है। मैं जो भी चाहूं, मैं मराठी मीडियम में पढ़ा लिखा लड़का था दोस्तों, लेकिन बंबई में आया तो इस एरिया में आया जहां सभी कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे बच्चियां थी। तो उनके बीच में फिट इन होने के लिए मैं बहुत स्ट्रगल करके इंग्लिश बोलना सीखा, उनके बीच में उठना बैठना सीखा। वो लोग इंग्लिश गानों पे डांस करते थे, मैं भी डांस करना सीखा। वो लोग इंग्लिश में हाय हेलो, उनका जो लाइफस्टाइल था वो वैसा का वैसा लाइफस्टाइल मैंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया दोस्तों। यानी मैंने हमेशा से ही विपरीत परिस्थिति के सामने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी इच्छा का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एक सक्सेसफुल युवा बनाया था। इसी बलबूते पर मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। इसी बलबूते पर मैंने अपनी नौकरी हासिल की थी। और नौकरी करते हुए भी मैंने कुछ कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से मेरी काफी प्रशंसा हुई थी। ये सभी चीजों ने मेरा एक सेल्फ इमेज मेरे मन में बनाया था। मेरा एक अपना ही ईगो अपना बनाया था कि अगर मैं चाहूं तो मैं कोई भी चीज कर सकता हूं। और जब सवाल आया शराब का, जब सवाल आया ये जब भी मेरा खुद के साथ में रिश्ता बन रहा था, उसी समय में मेरे जिंदगी में कम उम्र में ही शराब आ गई थी। और मेरे जो फॉर्मेटिव ईयर से मेरी जो पर्सनैलिटी डेवलप होते जा रही थी, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में शराब का भी काफी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। शराब ने मुझे गाना सिखाया, शराब ने मुझे नाचना सिखाया, शराब ने मेरा शर्मीला स्वभाव मेरे में से निकाला।
तो मैं जो भी फाइनल पर्सनैलिटी बना, जो मैं समझता था अट्रैक्टिव हूं, जो मैं समझता था कि दोस्तों को मैं खींच ला सकता हूं, मैं लड़कियों से बात कर सकता हूं, उनको पटा सकता हूं, ये जो मेरी पर्सनैलिटी है, एक इम्प्रेसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी के बलबूते पर मैं चाहे वो चीज कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ और। शराब का रेशो, शराब का पीना जैसे बढ़ते बढ़ते चले गया, तो उसी शराब ने, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, उसने अभी मेरा कॉन्फिडेंस छीन लिया। जिसने मुझे दोस्त दिए थे, अभी मुझे लोनर बना दिया, अकेले कर दिया। जिसने मुझे लोगों के साथ बात करने का कॉन्फिडेंस दिया था, अब वो मेरा कॉन्फिडेंस चला गया। मेरा यहां तक अवस्था हो गई थी कि घर से निकल के मैं ऑफिस तक पहुंच पाऊंगा, इतना भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं बचा था। वही शराब जिसने मुझे अपने आप से नए से पहचान करा के दी थी, अब ये शराब ने मेरा खुद का मैं कौन हूं, ये मेरे अस्तित्व को ही ललकारना शुरू कर दिया। क्या है ऐसा चीज कि ये मैं अपने आप को शराब पीने से रोक नहीं सकता हूं, ये मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था। मैं कंप्लीटली शराब के सामने हतबल हो चुका था। आई वॉज पावरलेस। मेरी कोई ताकत, मेरा कोई विल पावर शराब के सामने नहीं चल रहा था। और जैसे यहां पर अभी लकी भाई ने हाईलाइट किया है कि अल्कोहल एक जुल्मी पठान के जैसे बन चुका था, जिसने धीरे 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 मेरे अंदर से पूरा मेरा विल पावर छीन लिया, मेरा सेल्फ सफिशिएंसी छीन लिया, और जो भी शराब पीने के लिए करना पड़ेगा वो करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। फिर वो झूठ बोलना हो, काम पे से छुप कर जाकर भागकर पीना हो, या खुद के ऑफिस में ही शराब छुपा के रखना हो, बीवी के साथ झूठ, या रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते बिगड़ना, या समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देना, ये हर चीज शराब ने मेरे पास से एक 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 छीनते लेके गई। मैं कोई डिफीट मानना नहीं चाहता था दोस्तों। एक केमिकल के सामने तो डेफिनेटली नॉट। आई डिडंट वांट टू एक्सेप्ट। मैं नहीं मानना चाहता था कि मैं, जिसने बहुत सारी चीजें की है, एक शराब के सामने कमजोर हो गया हूं, ये मानना नहीं चाहता था। लेकिन जिस प्रकार से यहां पर एक स्टेटमेंट कहा गया है कि आवर बैंक्रप्सी एज गोइंग ह्यूमन कंसर्न्स इज कंप्लीट, जो भी एक आदमी के जीवन में अंग होते हैं, वो हर अंग में मैं बर्बाद होने लगा। अपने रिश्ते संभालने लायक नहीं रहा, ना नौकरी टिका सका, ना बीवी को संभाल सका, ना दोस्तों को बचा सका। हर प्रकार से, हर एक की नजर में से मैं गिरने लगा। ओवर टू यू लकी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। परमेश्वर कृपा लकी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। जब जब हम इस पहले कदम की बात करते हैं, और खास करके 12/12 में जब इस कदम को पढ़ते हैं, और बिल ने जो इसमें वो पराभव का, और शराब ने मेरे जीवन से क्या छीना है और मुझे बदले में क्या दिया है, इसकी बात होती है, तो मुझे वो मेरे पहले दिन याद आ जाते हैं। मैं इस लाइन को मैंने इसके लिए हाईलाइट किया कि शराब एक निर्दयी लेनदार की तरह मेरे से मेरी आत्मनिर्भरता और मेरी इच्छाएं चूस रही थी, छीन रही थी। मुझे ना पहली बेटी होने वाली थी, और मैं बड़ा खुश था। पीता मैं रोज था, और उसी खुशी में मैं जाके वो डॉक्टर को बोल के आया था, तो गायनेकोलॉजिस्ट को, कि जब मेरी बेटी होगी तो उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो काटने का मुझे काटना है। हाँ बोलती है, वेलकम, हम तुम्हारे को देंगे करने को। और जब पीता मैं रोज ही था, और ढेर सारी पीता था। जिस दिन शाम को उसको पेन्स हुए, मेरी पत्नी को, मैं खुशी में बैठे सोच रहा था, मन में ख्याल आया थोड़ी पी लूं। लेकिन मैं उसको, वो पहली बार बाप बनने का जो उत्साह था, एक खुशी थी,
वो खुशी प्रबल थी। नहीं, आज नहीं पिएंगे, आज घर में कोई आने वाला है, नया मेहमान, मैं बाप बनने वाला हूँ, वगैरह वगैरह। ये सारी भावनाओं की कश्मकश में शराब मेरे जीवन में अभी एक निर्दयी लेनदार बन गई थी। लास्ट में 11 बजे तक मेरी पत्नी को कुछ पेन्स नहीं हुए, तो मैं सोचा अभी सुबह होंगे, चल एक पैक मारते सो जाते। और वो एक पैक के 3 कभी हुए और 3 के 10 कभी हुए, मुझे पता नहीं है। मुझे होश आई अगले दिन सुबह, जब मेरे वर्कशॉप में काम करने वाले लड़के ने आके मुझे जगाया और बोला, लकी भाई उठो उठो, तुम बाप बन गए हो, तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है। अब आदमी के पास शर्म नाम की चीज होती है ना, उसको अफसोस नाम की चीज होती है। लेकिन आज जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ ये पढ़ते हुए, तो वो शर्म अफसोस सबको छीन लिया था। मैं भूल चुका था पूरी तरह से कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता था। डिलीवरी के वक्त उसका हाथ पकड़ना चाहता था, वो नाभि की नाड़ी काटना चाहता था। कितने अरमान थे मेरे, और वो सारे अरमान शराब ने खींच लिए थे मेरे पास से। वही बेटी के एडमिशन को मैंने सोचा कि मैं इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। मैं कम पढ़ा लिखा था, तो मैंने एक अच्छे स्कूल में फॉर्म मिलते वहां पे सुबह 5 बजे जाके लाइन लगाई। 8-10 आदमी लगे हुए थे, उनके पीछे मैं भी लग गया। भाई मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, ये आत्मनिर्भरता का विषय है, ये मेरी इच्छाओं का विषय है। जबकि शराब मुझसे मेरी सारी की सारी आत्मनिर्भरता छीन करके खुद पे निर्भर करवा लेती है। 7 बज गए और वो लाइन तो खुली नहीं, क्योंकि दरवाजा नहीं खुला था। 8 बजते बजते मैं वहां से, क्योंकि 9 बजे खुलना था और लाइन पीछे लंबी हो गई थी, मैं रजिस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि पहले रात की बहुत पी हुई थी, मुझसे बास आ रही थी, आगे पीछे वाले लोग देख रहे थे और मुझे उल्टी जैसा हो रहा था। मैं टॉयलेट के बहाने घर की तरफ आया और आके मैंने थोड़ी सी पी, फिर थोड़ी सी पी, और जब तक मैं वापस गया तब तक 11 बज चुके थे और वो लाइन खत्म, सब खत्म। मेरे सपनों को छीन लेती है शराब। एक जुल्मी पठान जैसे पूषण ने कहा, हमारे बंबई में ये बड़ा फेमस टर्म है, कितनी इच्छाओं को, कुछ इच्छाएं बहुत मासूम थी, कुछ इच्छाएं बहुत प्रबल थी। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की इच्छा थी, लेकिन शराब ने इतना कुछ छीन लिया कि बिजनेस के आइडिया सोचने के लिए मैं विवश होता था पीने के लिए। ये लाइन ने मुझे इतना सोचने को लगाया कि मैं शराब के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो गया था। सामान्य इंसान वो आत्मनिर्भर होता है बहुत सारे कामों के लिए, लेकिन मेरे अल्कोहलिज्म ने मेरे को पूरी तरह से शराब पे निर्भर कर दिया था। और ये निर्भरता इतनी बढ़ गई थी कि मैं उस पागल प्रेम और उस डिस्ट्रक्टिव ड्रिंकिंग, मतलब वो वहशियाने ढंग से पीने का, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा था। जब सोचने के लिए शराब लगती है, क्योंकि जब यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि गोइंग ह्यूमन कंसर्न, यानी कि मैं आदमी बोल के मेरे जो पहलू हैं, मेरे जो गुण हैं, मेरे जो कार्य हैं, वो पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं और मेरे पास कुछ शेष नहीं बचता। और ऐसे में मेरी खुद की पावर या खुद की ताकत बचती ही नहीं है। जबकि मैं सोचता हूं कि ये सब मैं करता हूं, लेकिन वो वक्त मेरे जीवन में ऐसा आ गया था कि शराब के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, कुछ भी नहीं कर पाता था। और यही चीज मुझे उस हॉस्पिटल के रूम में बैठे हुए अकेले में सोचते हुए, कि जब मुझे एक ए का मेंबर कह के गया, लकी तुम क्या बनना चाहते थे और क्या हो गया, और वो शराब से नफरत करने वाला लकी भाटिया जनरल हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में क्रॉनिक अल्कोहलिक
बन के एडमिट तक का दृश्य मैंने देखा, मैं बहुत निराश हुआ था दोस्तों, बहुत निराश हुआ था। लेकिन जब जब मैंने पहली मीटिंग की ए की अगले दिन सुबह सैटरडे को, बट अपॉन एंटरिंग ए वी सून टेक क्वाइट अनदर व्यू ऑफ दिस एब्सोल्यूट ह्यूमिलिएशन। उस रात को मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना खेद हुआ, खुद पे इतना गुस्सा आया, मैंने खुद को कह दिया कि लकी तू जीने के लायक है ही नहीं, तुझे तो अभी मर ही जाना चाहिए। 28 वर्ष की उम्र तक आते आते तूने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब मैंने पहली मीटिंग की, ये तीसरे पहरे की पहली लाइन मेरे उस पहली मीटिंग के सोच से बहुत मिलती है। जब मैंने देखा कि ये पराजय को लोग कैसे स्वीकार कर रहे थे, ये पराजय थी, बेइज्जती नहीं थी, एक सच्चाई का स्वीकार था। और इस पराभव को स्वीकार करने के बाद जब मैंने उस मीटिंग में लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा, आजादी की तरफ, मुक्तता की तरफ, और हर व्यक्ति जब आकर कह रहा था ना कि मैं अल्कोहलिक हूं, तो वो अपनी पर्सनल पावरलेसनेस, व्यक्तिगत हतबलता, वो स्वीकार कर रहा था। और दोस्तों, मैं उस पहली मीटिंग में ही मैंने ये स्वीकार किया कि मैं एक शराबी हूं। और शायद ये स्वीकार करना इस बात के ऊपर कि पहले 3 पैरों के खुलासे में कि मेरे जाना कहां था और मैं पहुंचा कहां, उस सच्चाई की तरफ देखते हुए, मैंने क्या क्या खोया है देखते हुए, मेरा और मेरे शराब के रिश्ते में शराब के ओहदे को देखते हुए ये समझ जाना बहुत आसान हो गया। और दोस्तों, उसी आसानी पे एक हैप्पी और पर्पसफुल लाइफ का फिर से पुनरारंभ होता है। चंदू, दी लास्ट पैरा ऑफ दिस पेज प्लीज। चंदू। Thank you, Lucky. We know that little good can come to any alcoholic who joins A unless he has first accepted his devastating weakness and all its consequences. Until he so humbles himself, his sobriety, if any, will be precarious. Of real happiness, he'll find none at all. Proved beyond doubt by an immense experience, this is one of the facts of AA life. The principle that we shall find no enduring strength until we first admit complete defeat is the main taproot from which our whole society has sprung and flowered. When first challenged to admit defeat, most of us revolted. We had approached A expecting to be taught self-confidence. Then we had been told that so far as all alcohol is concerned, self-confidence was no good whatever. In fact, it was a total liability. Our sponsors declared that we were victims of a mental obsession so subtly powerful that no amount of human willpower could break it. There was, they said, no such thing as the personal conquest of this compulsion by the unaided will. Relentlessly deepening our dilemma, our sponsors pointed out our increasing sensitivity to alcohol, an allergy, they call it. The tyrant alcohol wielded a double-edged sword over us. First, we were smitten by an insane urge that condemned us to go on drinking, and then by an allergy of the body that ensured we would ultimately destroy ourselves in the process. Few indeed were those who, so assailed, had ever won through in single-handed combat. It was statistical that fact that alcoholics almost never recovered on their own resources. And this had been true, apparently, ever since man had first crushed gates. ये लाइन मेरी फेवरेट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सो लकी, मुझे याद है द फीलिंग ऑफ शेम। जब भी पहली दफा मुझे एक मुलुंड के हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था और एक हफ्ता भर लॉक एंड की में वहां पर पहले रखा,
और मैं जहां नौकरी करता था, लोग हमेशा पूछते थे कि तेरे को हुआ क्या है। और मुझे बड़ी शर्म लगती थी कि मेरे शराब रोकने के लिए मुझे एडमिट करना पड़ रहा है। मैं अपनी शराब को रोक नहीं सकता हूँ, रुके हुए नहीं रह सकता हूँ, और एक दफा पीना चालू करता हूँ तो मुझे और पीनी पड़ती है। ये बात मैं लोगों को कह नहीं सकता था। तो जो बिल बात करता है अटर ह्यूमिलिएशन की, वो ह्यूमिलिएशन मुझे अभी भी याद है। जब भी एक रिहैब सेंटर में मुझे बाद में भर्ती होना पड़ा, उसके पहले की अवस्था बहुत गंभीर थी। नॉन स्टॉप पी रहा था, खाने पीने का शुद्ध नहीं था। बाथरूम के 3 फुट के डिस्टेंस पे मेरा बेड हुआ करता था, लेकिन बेड में से उतर के बाथरूम में जाने इतनी भी ताकत नहीं बचती थी। ऐसी गंभीर अवस्था में जब भी पहुंच गया और मैंने बोला कि भाई मुझे एडमिट करो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी जगह पे बंद करवा दो जहां से मैं चाहूं तो भी नहीं पी पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी खुद के ऊपर का विश्वास उठ गया था। मैं अपने आप की मदद कर पाऊंगा ऐसे मुझे लग नहीं रहा था। मुझे ऐसे लगता था कि मैं थोड़ा सा मेरा विलिंगनेस कम हो जाएगा तो मैं दोबारा उठूंगा और वापस ट्राई करने को चला जाऊंगा, एंड आई डिडंट वांट टू डू दैट। तो मैंने अपने आप को एडमिट करवाने के लिए तैयारी की और मैं भर्ती हो गया। शुरुआत के दिन अ, अपने आप के ऊपर ही गुस्सा था कि क्या हाल बना के रखा है साले, तू क्या बनने निकला था और क्या तेरा हाल हो गया है। दिसंबर का महीना था और ठंड थी उस साल, और सुबह 5:30 बजे उठ के मैं ठंडे पानी से नहलाता था, अपने आप को पनिश करता था, अपने आप को जगाना चाहता था कि दिस इज व्हाट यू डिजर्व, ये तेरी लायकी यही है। फिर एक 4-6 दिनों में वो गुस्सा निकल गया और फिर एक डर सा आ गया। अरे बाप रे, तब तक शरीर में से शराब बाहर निकल चुकी थी और मैं तो रिहैब सेंटर के अंदर जाली में लॉक एंड की में बंद हो गया था। और 4 दिन के बाद मेरे में एक अननोन सा डर पैदा हो गया कि मैंने ये क्या कर लिया यार, कहाँ अपने आप को बंद कर लिया। तब तक इतना तो समझ में आ चुका था कि यहाँ आते तो आप किसी भी तरीके से हो, खुद की मर्जी या किसी और की मर्जी से, लेकिन बाहर तो यहीं से तभी निकलोगे जब इनकी मर्जी होगी। तो सडनली मेरे अंदर डर आ गया, हर चीज का डर लगने लगा। यार मैं जब बाहर निकलूंगा तब तक मेरी नौकरी गई होगी, मेरे पास पैसा नहीं होगा। मैं बाहर निकलूंगा तब तक शायद बीवी भी घर छोड़कर चली गई होगी, मेरा 1 साल का बच्चा था, शायद मेरे को बच्चे का मुंह भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं बाहर निकलूंगा तो कोई दोस्त तो करीब लेगा नहीं, मेरे को घर में भी वापस जाने का रास्ता बचेगा कि नहीं, हर चीज का एक क्वेश्चन मार्क मन में था। और मैं पूरी तरह से डर से ग्रस्त हो गया था। तो पहली जो एंगर की एनर्जी थी, वो एंगर की एनर्जी निकल गई और अभी डर का डिप्रेशन आ गया। डर ने मेरे बदन की पूरी ताकत निकाल दी। मुझे उठने की भी इच्छा नहीं होती थी, मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती थी। मैं कैसे अभी ये समय निकालूंगा, ये क्वेश्चन मार्क पर 24 घंटे मन में रहता था। और फिर एक हफ्ते 10 दिन के बाद में जब मन ने स्वीकार कर लिया कि भाई तू कहीं नहीं जा रहा है, अब तो यहाँ पर फॉर गुड और फॉर बैड यू हैव कम इनसाइड, अभी दोबारा वापस कभी नहीं पीना पड़े, इसके लिए जो भी तैयारी करनी होगी उसकी तैयारी में लग जा। और उसके बाद में दोस्तों मेरे कान खुल गए, उसके बाद में मेरी बुद्धि खुल गई कि यहाँ पर क्या चला है। नहीं तो इट वॉज ऑल अबाउट इसने ऐसा किया, उसने वैसा बोला, ये नहीं होता था तो वो नहीं होता था। आई वॉज फोकस्ड आउटसाइड। मैं पूरे ब्लेम जो दे रहा था, वो मेरा बॉस बुरा है, मेरी बीवी बुरी है, मेरा माँ बाप बुरा है, मेरा दोस्त लोग बुरा है, मेरा पूरा फोकस ऑन ब्लेमिंग अदर्स था। लेकिन 10-15 दिन के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम तो मेरे भीतर था यार। प्रॉब्लम तो मेरे अंदर था कि एक दफा शराब पीना चालू करने के बाद में मैं रुक नहीं पाता हूं। और मैं खाली रुक नहीं पाता हूं इतना बात नहीं है, बल्कि मेरे मन में कितना भी शराब ने मुझे तकलीफ दिया होगा, फिर भी शराब के प्रति के जो अच्छी मेमोरीज है वही मेरे मन में रहती है। और बार बार मैं वही मार खा खा के बार बार मैं पीने को चला जाता हूं।
ये दोनों की जो कैची है, एक तरफ वो जो मानसिक खिंचाव और दूसरी तरफ ये शारीरिक कंपल्शन टू ड्रिंक, जो बिल डब्ल्यू कह रहा है यहाँ पर कि सम सॉर्ट ऑफ एलर्जी, हमारे स्पॉन्सर्स ने बताया कि भाई तेरे शरीर में कुछ बदलाव हो गया है। मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था कि भूषण, तू ले इधर बैठ, अगर तेरे को बोलेगा कोई कि तू 2 बाटली छाछ पी, तो तू पी सकेगा? तो मैं बोला प्रोबेबली 1 आध बाटली मैं मुश्किल से खत्म कर पाऊंगा। लेकिन बोला अगर मैंने 2 बाटली बियर की रखी तो मैं बोला वो 2 बाटली पी के मैं और 2 मांगूंगा। तो बोले तेरे शरीर में शराब को हजम करने की एक स्पेशल कैपेसिटी निर्माण हो गई है। तो अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ अल्कोहल तेरा शरीर प्रोसेस कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। इतनी मात्रा में दूसरा कुछ भी फ्लूइड में तेरे शरीर में डालूंगा तो तू अंदर ले नहीं पाएगा, वॉमिट कर देगा। तो तेरे बॉडी में भी एक प्रायोरिटी ट्रैक हो गया है, तेरा शरीर को एक सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल सेंसिटिविटी हो गई टुवर्ड्स अल्कोहल, कि जब भी शराब और खाना भी अगर एक साथ में आता है तो शराब को पहला प्रायोरिटी मिलता है, खाना खाया नहीं खाया कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड कपल्ड विथ मेंटल ऑब्सेशन, दूसरी तरफ मन की ऐसी अवस्था कि कंटिन्यूअस पीने के ही विचार, कंटिन्यूअस पीने के विचार, और बगैर शराब के मैं टिक नहीं पाऊंगा, बगैर शराब के मैं सामना नहीं कर पाऊंगा, बगैर शराब के मुझे मुझे जिंदगी की बेसिक फंक्शंस पूरा करने के लिए भी मुझे शराब की जरूरत लग रही है। ये कंप्लीट भावनिक और मानसिक डिपेंडेंस शराब के ऊपर, ये दोनों की कैची की वजह से जो ये बता रहे थे कि मेरा विल पावर इसके ऊपर काम ही नहीं कर पाता था। मेरा डॉक्टर ने बहुत खूबसूरती से बताया था कि कैसे विल पावर काम करेगा भूषण, व्हेन द विल इज टू ड्रिंक, हाउ विल द विल पावर वर्क अगेंस्ट इट। अगर इच्छा ही पीने की हो तो न पीने के लिए इच्छा शक्ति कैसे काम करेगी? और वो जो पीने की इच्छा है वो इतनी प्रबल हो चुकी है कि थोड़े बहुत अगर न पीने के विचार आते भी है तो वो ये प्रबल विचार के सामने वो टिक नहीं पाते। तो कैसे वैसे मैंने सुबह से दोपहर तक या शाम तक समय निकाल भी लिया, तभी शाम होने के बाद में एक तो फिजिकल डिस्कम्फर्ट, हाथ पैर कांप रहे, और दूसरी तरफ मेंटल डिस्कम्फर्ट, मैं खुश नहीं हूं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, ये मेंटल डिस्कम्फर्ट एंड सीकिंग अ स्पिरिचुअल रिवॉर्ड। मेरे मन में एक ही है कि मैं शराब पीऊंगा और मेरे को शांतता महसूस होगी। तो ये जो ट्रैप है, ये ट्रैप में मैं इतना फंस गया था कि जो बिल डब्ल्यू कहते हैं ना, रिलेंटलेसली डीपनिंग आवर डिलेमा, धीरे 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 मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि शराब मैं चॉइस से पी रहा हूं कि कंपल्सन से पी रहा हूं। शराब पीने से मुझे अच्छा लगता है कि मुझे बुरा लगता है? शराब से मेरा भला हो रहा है कि मेरा बुरा हो रहा है? शराब से मेरे रिश्ते बन रहे हैं कि मेरे रिश्ते टूट रहे हैं? हर चीज के बारे में कंफ्यूजन सा स्टेट हो गया था कि जो एक नॉर्मल लॉजिकल माइंडसेट जहां पर काम कर सकता है, वो लॉजिकल माइंडसेट ही काम नहीं कर सकता था। पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी थी दोस्तों। और ऐसी अवस्था में जब ही अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, जब ही मैंने मान लिया कि मैं कंप्लीटली पावरलेस हूं, मेरा नहीं बस चलता यार, ये शराब के प्यास के सामने और ये ऑब्सेशन के सामने मेरा बस नहीं चलता है, ये जब मैंने बात मान ली, जो यहाँ पर बात करते हैं कि सरेंडर के ऊपर ही वो जो कंप्लीट, नहीं भाई मेरे से नहीं होता है, कोई आओ और मुझे मदद करो, मेरे को इसमें से बाहर निकालो, ये जब तक भाव नहीं आता है तब तक ये जो झगड़ा है ना शराब के साथ, उसमें से छुटकारा नहीं मिलता। एक सीनियर मेंबर हमेशा कहते थे, अरे पूषण, शराब ये महामाया है, तो जितना उलझेगा उतना फंसते जाएगा। एक दफा उसके सामने सरेंडर कर दे और बोल दे कि तेरी सेवा में पूरी जिंदगी, पूरा करियर, पूरे रिश्ते मैंने आपके सामने डाल दिए हैं, अब तो मुझे बख्श दे, अब तो मुझे छोड़ दे। ये भाव जब भी तेरे दिल में आएगा ना कि मुझे बचना है, ये ताकत के साथ लड़ना नहीं है, मुझे बचना है, एंड आई सरेंडर माई विल, मेरी इच्छा, मेरा जो मेरा ये जो
ईगो है, मैं कर सकता हूं, ये जो फीलिंग है, ये जब भी मैं छोड़ दूंगा, जब भी मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा, सरेंडर होगा, मैं जब जीरो अपने आप को बना लूंगा, तब भी जाके मेरे जीवन में कुछ बदलाव आएगा। जैसे हमारे एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हमेशा कहते थे कि only when you come to the zero, you come to that state where you have nothing else to lose and everything to gain. जब भी आप शून्य में पहुंचते हो, तभी आप उस अवस्था में आते हो कि अभी खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब जो भी है वो पाने के लिए ही बचा है। ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। और ये जो सरेंडर है, बिल कहता है कि इस सरेंडर के बल पर ही पूरी सोवराइटी की इमारत खड़ी हो जाती है। तो ये सरेंडर ऑन अ कंटिन्यूअल बेसिस मुझे रखना, ये मेरे सामने इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहेगा। ओवर टू यू लकी। श्योर श्योर। मैंने ये ऊपर का हाईलाइट किया भूषण, देखो कितना प्रोफाउंड स्टेटमेंट बिल अभी ये पिछले 15 सालों के अनुभव में उसको आया है कि वो तत्व के हम में से किसी को भी वो ताकत नहीं मिलेगी जब तक कि हम पूर्ण पराभव स्वीकार नहीं करेंगे। ये तत्व हमारे इस पूरे पेड़ का, हमारी इस पूरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस सोसाइटी का मेन टैप रूट है। टैप रूट जो मुख्य जड़ होती है ना, जो सबसे मोटा तना, जो सबसे ज्यादा गहरा जमीन में जाता है, जो जिसको पानी मिलता है, वो तना, उसको टैप रूट बोलते हैं। तो आज अगर हम ये 12x12 का स्टडी कर रहे हैं, इसमें से बिल के विचारों को पढ़ते हुए, बिल के खुलासों को पढ़ते हुए, बिल जो दलीलें दे रहा है यहाँ पे, बिल जो संभावनाएं बता रहा है, बिल जो सच्चाइयां बता रहा है, उन सच्चाइयों में मैं समझता हूं कि हर शब्द को उसने कितना चुन चुन के लिखा हो। इसी वजह से शायद वो लिखा है ना, पर्सन की शुरुआत, इस रास्ते की शुरुआत ही उस तत्व से होती है कि जब तक मैं घुटने नहीं टेकूं, तब तक आगे किसी भी प्रकार की प्रगति हो नहीं सकती है। और मैं इसको जैसे जैसे अपने अनुभव जोड़ते जाता हूं ना भूषण, कई जगह पे महसूस होता है मुझे, ये थोड़ी सी आवाज आ ही जाती है, मैं कर लूंगा। कई बार ऐसे मौके आए जहां शराब बंद हुई, और वो छोटे छोटे मौकों को, 2-4 दिनों को मैं पता नहीं बना कि जैसे मैं चाहूं जब भी छोड़ सकता हूं। मेरे पास वो इच्छा शक्ति है, मेरे पास वो ताकत है। और ऐसी ही दलीलें देते देते बिल लास्ट में जो ये लाइन लिखता है ना, जो चंदू की भी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है, कि जब से इंसान ने अंगूरों को दबा के उसके रस को फर्मेंट करके, और पहली बार जब उनको वो 4 चक्कर आए ना उस वाइन में से, और उनमें से जब कुछ लोग हमारी तरह के हो गए, तभी से लेके आज तक कोई अकेले के दम पे इसमें से निकल नहीं पाया है। ये 2 धारी तलवार है, मन का ऑब्सेशन और बाद में शरीर की प्यास। कुछ ना कुछ तो चालू ही रहेगा, और इस चालू रहने को साइक्लिकल बोलते हैं हम। इसके लिए विशियस साइकिल, या तो मेंटल ऑब्सेशन चालू रहेगा, वो काटता रहेगा मेरे को, कब छूटूंगा इधर से, कब मेरा काम पूरा होगा, कब मैं पीने जाऊंगा, ये मेंटल ऑब्सेशन, कब कब किसके साथ क्या। भले दिनचर्या में जुड़ा हूं, और पीने के बाद वो तलवार की दूसरी धार काम करने लग पड़ती है कि बस अभी तो बेटा तू पी। कटना मेरे जैसे ने 24 घंटे ही है, 24 घंटे ही कटना है। और ये जब आज अपने अनुभवों से देखता हूं, तो ये सारी सच्चाइयां समझ में आती हैं। और इसके आगे के पैरा में जब चंदू पढ़ेगा ना, तो बिल अभी वो शुरुआत की बात करना शुरू कर देता है। और शुरुआत की बात, ओवर टू यू चंदू। Thank you. In AA's pioneering time,
None but the most desperate cases could swallow and digest this unpalatable truth. Even these last graspers often had difficulty in realizing how hopeless they actually were. But a few did, and when these laid hold of AA principles with all the fervor which the drowning sees life preserves, they almost invariably got there. That is why the first edition of the book Alcoholics Anonymous, published when our membership was small, dealt with low bottom cases only. Many less desperate alcoholics tried AA but did not succeed because they could not make the admission of hopelessness. It is a tremendous satisfaction to record that in the following years this changed. Alcoholics who still had their health, their families, their jobs, and even two cars in their garage began to recognize their alcoholism. As this trend grew, they were joined by young people who were scarcely more than potential alcoholics. They were spared that last 10 or 15 years of literal hell the rest of us had gone through. Since step one requires an admission that our lives had become unmanageable, how could people such as these take this step? It was obviously necessary to raise the bottom the rest of us had hit, to the point where it would hit them. By going back in our own drinking histories, we could show that years before we realized it, we were out of control, that our drinking, even when was more mere habit, that it has indeed the beginning of a fatal progression. To the doubters, we could say, perhaps you're not an alcoholic after all. Why don't you try some more controlled drinking? Bearing in mind, meanwhile, that we have had told you about alcoholism, this attitude brought immediate and practical results. It was then discovered that when one alcoholic had planted in the mind of another the true nature of this malady, that person could never be the same again. Following every spree, he would say to himself, maybe those A's were right. After few such experiences, often years before the onset of extreme difficulties, he would return to us convinced he had hit bottom as truly as any of us. John Barleycorn himself had become our best advocate. Advocate. John So Barleycorn. starting from the pioneering times, Bhushan. सो बम्बई में हम लोग इसको बोलते हैं पीने वाले के गिलास में कॉकरोच डालना। कॉकरोच डालना। बराबर है ना? तो एक हाँ, दफा हाँ। कॉकरोच गिर जाता है, फिर ना वो गिलास में से तुम पी सकते हो, और पियो तो भी एंजॉय नहीं कर सकते हो। ये बात हो जाती है क्योंकि अभी खुद ही का मन बैरी बन जाता है कि कहीं मैं शराबी तो नहीं बन गया, कहीं मैं इन जैसे बेवड़ों के जैसा तो नहीं बन गया। तो ये जैसे हम लोग ने प्रीफेस स्टडी किया और इंट्रोडक्शन ये किताब की जब भी हम लोग पढ़ रहे थे लकी, तभी हम लोगों ने बात किया कि जब भी 1939 में जब भी बिग बुक अपनी बुक अल्कोहलिक्स एनोनिमस पब्लिश हुई, वो टाइम पे जो स्टोरीज थी, वो टाइम पे जो फोकस था, वो पूरी तरह से रॉक बॉटम अल्कोहलिक्स के ऊपर था, जो पूरी तरह से बर्बाद होकर आए हुए हैं। लेकिन आगे वाले 6 सालों में बिल डब्ल्यू ने देखा कि कई प्रकार के लोग आ रहे हैं, यंगर पीपल, मोर अवेयर पीपल, मोर एजुकेटेड पीपल, मोर वेल टू डू पीपल, ये सब लोग आ रहे हैं। अभी इनको कैसे क्या अपना रॉक बॉटम एडमिट कराए, ये हमेशा से ही चैलेंज रहा था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो स्विच है, जो कि रेजिंग द बॉटम का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बिल डब्ल्यू बात करता है। तो पहले जो हम लोग देखते थे कि इन द फर्स्ट दिस थिंग, हम लोग फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन ये दोनों पे ही बहुत ज्यादा हार्प कर रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पर फोकस आता है लाइफ अनमैनेजेबल होने का। जो सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट स्टेप जो है, दैट माई लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, मेरी जिंदगी तहस नहस हो चुकी है। एंड आई थिंक दिस इज अ मैटर विच इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव। यानी किसी की नौकरी जाना, पहली नौकरी जाना, ये किसी का सबसे बड़ा क्राइसिस हो सकता है, तो किसी का रास्ते पे भीख मांगना भी शायद क्राइसिस नहीं हो सकता है। किसी का बीवी के साथ झगड़ा होना क्राइसिस हो सकता है, तो किसी का बीवी का छोड़ जाना भी क्राइसिस नहीं हो सकता है। तो जब ही
ये डायमेंशन पे आते हैं कि आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त या अनबेरेबल अगर हो रही है शराब पीने के वजह से, खुशी कम और तकलीफ ज्यादा अगर होने लगी है, तो शायद आपने अपने आप को अल्कोहलिक मान लेना चाहिए। और वहां पर बीडब्ल्यू क्लियरली ये गाइडलाइन देता है कि अगर कोई यंगस्टर ऐसे है जो बोलते हैं कि उनको श्योरिटी नहीं है कि वो अभी तक शराबी बन चुके हैं या नहीं, तो हम उनको कैंडिड सजेशन देते हैं, भाई तो अभी भी कुछ थोड़ा सा कंट्रोल ड्रिंकिंग करने का कोशिश करके देख। अगर जमा तेरे को तो बहुत बढ़िया, यू आर अ सोशल ड्रिंकर। अगर लेकिन नहीं जमता है तो देन रेस्ट ऑल योर डाउट्स एंड कम एंड जॉइन अस। तो हम्म। अ, कई बार हम लोगों ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ऐसी केसेस देखी हुई है, लकी तूने, मैंने, हमने बहुत दफा देखी हुई है, जो लोग आते हैं कहीं से कहाँ सुना सुनकर जानने के लिए कि ए मेरे लिए है क्या, और फिर यहाँ आने के बाद में उनको लगता है नहीं यार ये तो तुम बहुत ही, मतलब मेरे को इसमें से कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो हफ्ते की एक क्वार्टर के ऊपर भी नहीं पीता हूँ, वगैरह वगैरह। पीपल हु विल पुट देयर विल गेज देयर अल्कोहलिज्म, अपनी बीमारी को अपनी सिम्टम्स के भरोसे वो जांच लेते हैं और फिर वो चले भी जाते हैं, और शायद कुछ 8-8 10-10 साल तक वापस आते भी नहीं है। लेकिन जब भी कभी उनके जीवन में वो अस्त व्यस्तता वाली बात बढ़ जाती है, जो जो अनमैनेजेबिलिटी वाली बात बढ़ जाती है, तो उनको पता रहता है दोबारा मुड़ कर के भाई अगर इस स्लाइड पे से फिसल कर आप नीचे तक पूरी तरह से आपको घिसना नहीं है, तो बेहतर यही है कि व्हेन द स्लाइडिंग इज गोइंग डाउन, तभी उसमें से उतर कर अपने आप को रोककर बाहर आ सके। ओवर टू यू। Yeah. मेरे को चंदू याद आ गया भूषण। चंदू जब भी नया नया आया था, चंदू यू रिमेम्बर ना? चंदू, यस लक्की जी, यस अभी यस यहाँ यस। पे यहाँ पे मेरे को तेरा भी एक्सपीरियंस लगेगा। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं जो जो मैं इस पैराग्राफ में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जैसे अपूषण ने कहा और जो हमने इतिहास में पढ़ा है, ये जो लास्ट गैस्पर का मतलब होता है आखिरी सांस लेने वाले। तो शुरुआत की हमारी रिकवरी थी ना, वो सारी की सारी ऐसी ही थी, जो कि बस लिवर सिरोसिस हुआ पड़ा है, हॉस्पिटल में एडमिट है महीनों से, कोई पूछने वाला नहीं, और जिंदगी के आखिरी सांसें गिन रहे हैं, ऐसे लोग थे। लेकिन वक्त के बाद में जब ऐसे लोग आने लगे कि जो अभी जिनका शायद वो हालत 15 साल 10 साल पीने के बाद होना था, ऐसे जब लोग आने लगे, तो ऐसे में ये अस्त व्यस्तता की जो बात आती है, मुझे याद है भूषण, मेरे को जो सबसे ज्यादा हिट किया था ना, जिसने मेरा मैसेज दिया, जिसने मुझे मैसेज दिया, वो मैसेज देने के बाद मेरे को जाते जाते बोल के गया, बोलता है सरदार जी, तुम जरा एक स्मार्ट सरदार दिखता है, एक बात को सोचो जरा, तुम जिंदगी में क्या बनने चले थे और क्या हो गया। ये दो लाइनों को लेके मैं कई घंटे सोचता रहा, बचपन में चला गया, अपने सपने, अपने ख्वाब, अरमान मेरे, क्या क्या करना था जिंदगी में, कहां कहां पहुंचना था। और फिर जिंदगी की गाड़ी कौन से मोड़ लेती गई, पता नहीं चला। और 28 बरस की उम्र में मैं क्रॉनिक अल्कोहलिक हो गया। पूरी तरह से भटक चुका था मैं। और ये शायद वो जिंदगी की अस्त व्यस्तता को खुद के अनुभव से देखने पे, ये लाइन आज भी न्यू कमर्स या हम मैसेज देने के टाइम पे जब इसका इस्तेमाल करते हैं, वो इसी के लिए होती है, ताकि शराबीपन तो दूर की बात है, शराब के किए हुए नुकसान तो दूर की बात है, लेकिन मूल तौर के ऊपर मैं जाना कहाँ चाहता था और पहुंचा कहाँ हूं। क्या मैं यहीं जाना चाहता था कि कहीं और जाना चाहता था? कहाँ भटक गया मैं? और यहीं पे शायद वो बॉटम को रेस करने वाली बात आती है। चंदू, वुड यू लाइक टू शेयर? यस, क्विकली। हम्म। दोस्तों, मैं मुंबई में रहता, थाने में रहता था, और 30 साल का उम्र उम्र में हैदराबाद के एक रिहैब में बैठा हुआ था।
अपने चौथे महीने में, जब आखिरी हफ्ता था मेरा रियाद से छूटने का, तब भूषण आए थे हैदराबाद। किसी और काम से आए थे, लेकिन शेयर ने मेरे को बोला कि आ जा, मीटिंग थाने में ही रहता है तू। और 2011 था, 11 का बात है ये। तो फिर मैं रिवाइवर ग्रुप में आने लगा और मीटिंग करने लगा दोस्तों। लेकिन मुझे करीब 6 साल लगे, इन आउट इन आउट इन आउट करते। हर बार ये प्रूव करना चाह रहा था कि शायद शायद मैं पी सकता हूँ दूसरे लोगों की तरह, लेकिन नहीं हो पाया दोस्तों। और फिर 2017 में ईश्वर की कृपा से बेंगलोर में मैं सोबर हुआ। दूसरे मेंबर्स की काफी मदद रही उसमें। और आज मैं 8 साल का बर्थडे मना चुका हूँ दोस्तों। धन्यवाद। मुझे थैंक यू याद है चंदू। लकी, पुराने समय में जो मेंबर्स रहते थे, ओल्ड टाइमर्स, मैं नया नया था और वर्सोवा की मीटिंग में जाता था, अंधेरी में रहता था, वर्सोवा की मीटिंग में जाता था या फोर बंगलो मार्केट की मीटिंग में जाता था। और वहां पर एक हमारे ओल्ड टाइमर आते थे और वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारे लिए मैंने सफर किया हुआ है, मैं कई बार खड्डे में गिर चुका हूं, तुमको वो खड्डे में गिरने की जरूरत नहीं है। मैं अपना तजुर्बा तुम्हारे सामने रख रहा हूं ताकि तुम्हें उन्हीं खड्डों में गिरने की जरूरत नहीं है। उनका खुद का ट्रेन एक्सीडेंट में, शराब के नशे में ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कट गया था। और वो हमेशा कहते थे कि तेरे लिए मैं पैर काट के आया हूं, तेरे को काटने की जरूरत नहीं है, तू अपने पैरों को बचा ले। तो पुराने हमें मेंबर्स हमेशा बताते थे कि जो इफ दे सॉ यू कि तू हाई बॉटम केस है, तेरा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, या तो कम उम्र में आया हुआ है, तेरी नौकरी अभी तक बची हुई है, फैमिली अभी तक इंटैक्ट है, देर इज सो मच यू कैन स्टिल डू, अभी भी बहुत सारी चीजें तुम्हारी बनाना बाकी है। तो ये पुराने सदस्य हमें जरूर बोलते थे कि भाई बच के रहना, ये सब जो तेरे पास है वो ईश्वर की कृपा से तेरे पास में बचा हुआ है, उसे बचाए रखना। हम्म। हमने सफर किया है तेरे लिए। कितनी गहरी बातें देखो। एक एक शराबियों की दुनिया में ऐसे विचारों को लाना, ऐसे तत्वों को लाना और इस तरह से पेश करना कि मैं तेरे लिए मार खा के आया हूँ, मैं नौकरियां गवा के आया हूँ, मैं बेइज्जतियां करवा के आया हूँ। कई बार मैंने भी सुना है पूछन कि ये ढलान है भाई, ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये ढलान वाला ही रास्ता है, तू चाहे वहां रुक जा, जहां तू रुक जाएगा वहीं से फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो सकता है, फिर सामान्यता आ सकती है। और तो और मेरे को वो मेरे ग्रुप के ओल्ड टाइमर याद है कि जब कभी डाउट होता था तो खीसे से निकाल के 100 का नोट पकड़ा देता था, लकी कोशिश करके आ जाना, जा पी ले, दुकानें खुली है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दरवाजा भी खुला है। अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कि तू समय से पहले आ गया, तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई इसके लिए आ गया, या घर वालों ने खामखा का ज्यादा शोर मचा दिया इसकी वजह से आ गया, तो ये ले, मैं तेरे को पैसे देता हूँ 100 रुपया, जा बेटा पी। और अगर पी सकता है मजे से तो मजे से पी, क्यों इधर आता है। ये सारी चीजें उन उन इशारों की तरफ लेके जाती हैं। और आज कितना जो बिल ने ये ऐसे लिखे हुए हैं, इसमें से आज हम जो भी बातें करते हैं ना मीटिंग्स में, भले किसी भी भाषा में करें, वो यही बातें हम कर रहे हैं। ये 1946 में लिखी हुई किताब है और उसमें के लाइनें हम पढ़ रहे हैं, और ये सारी की सारी लाइनें हमको सुनने को मिल रही हैं। कुछ लोगों ने हैंड रेस किए हैं, मैं एक्चुअली समझता हूं स्लाइड कि करेक्शन है लकी, ये किताब लिखी गई है 1951-52 में। 12 ट्रेडिशंस 46 में लिखे गए थे। ये किताब अच्छा, आफ्टर डॉक्टर बॉब्स डेथ हाँ, 51-52 में, बिल वॉज स्ट्रगलिंग विथ हिज अर्ली साइंस ऑफ हिज डिप्रेशन, और उसको रियलाइज हो रहा था कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी है, गड़बड़ तो नहीं कर दी, तभी उस उस फेज ऑफ माइंड में उसने ये किताब लिखी हुई है। सो पूछन ऐसा करते हैं, लास्ट के 2 पैरास हैं, पहले वो ये पढ़ लास्ट के रहे दो हैं। पैराग्राफ ले लेते हैं और फिर जो जिनको शेयर करना है उनको शेयरिंग का मौका देते हैं।
भूषण जी, यस, लकी जी, मैं शेयर नहीं करना चाहता। ये जो बॉटम का ये आ रहा है, और इसमें आगे में 2 पैराग्राफ बॉटम पे ही है। बॉटम पे ही है। उसमें और उसमें एक लाइन जो बिग बुक की है कि टाइम कम्स इन अल्कोहलिक्स लाइफ व्हेन ही कैनॉट इमेजिन लाइफ विथ और विदाउट अल्कोहल, बोथ। उस पे थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा और मजा आ जाएगा। कोई नहीं, अभी चंदू पढ़ेगा और उसमें वो कंक्लूडिंग 2 पैराग्राफ्स में वो सारा सम अप हो जाएगा। लेकिन क्या ओके। है कि बॉटम की जहां बात है, ये जॉन बार्लिकॉन जो लिखा हुआ है, ये एक मशहूर नाम था तभी। ये जो इंग्लिश ज्यादा जानकार नहीं है, मैं हमेशा शुरुआत में कंफ्यूज होता था, ये जॉन बार्ली कौन क्या है। और फिर मुझे पता चला कि ये बार्ली से बनती है शराब, कॉर्न से बनती है शराब, इसके लिए शराब को ही दिया हुआ एक पुरुषी नाम है, हाँ, जॉन बार्ली कॉर्न। तो वो कहते पर्सोनिफाई हैं कर दिया कि उसको। अगर आप नहीं मानोगे तो शराब ही आपकी पिटाई करके आपको मनवा के लाएगी। चंदू प्लीज रीड। ओके, लाइक बेसिकली विस्की बनती है बार्ली से। ओके। Why all this insistence that every AA must hit bottom first? The answer is that few people will sincerely try to practice the AA program unless they have hit bottom. For practicing AA's remaining 11 steps means the adoption of attitudes and actions that almost no alcoholic who's still drinking can dream of taking. Who wishes to be rigorously honest and tolerant? Who wants to who wants to confess his faults to another and make restitution for harm done? Who cares anything about a higher power, let alone meditation and prayer? Who wants to sacrifice time and energy in trying to carry a message to the next sufferer? No. The average alcoholic, self-centered in the extreme, doesn't care for this prospect, unless he has to do these things in order to stay alive himself. Under the lash of alcoholism, we are driven to A, and there we discover the fatal nature of our situation. Then and only then do we become as open-minded to conviction and as willing to listen as the dying can be. We stand steady. To The do merciless anything. obsession from us. Thank you. क्या हुआ आवाज को? नहीं, चंदू का रीड करके हो गया। यस, वी फिनिश्ड इट। तो लास्ट पैरा नहीं पढ़ा क्या, अंडर द लैश ऑफ अल्कोहलिज्म? हाँ, ये पढ़ा, बट उसका बीच में लास्ट में आके कट गया है। Under the lash फिर of से पढ़ो। alcoholism, we are driven to A, and there we discover the fatal nature of our situation. Then and only then do we become as open-minded to conviction and as willing to listen as the dying can be. We stand ready to do anything which will lift the merciless obsession from us. Very true. लास्ट दोस्तों, गैस पर के हाथ लाके खड़ा कर दिया। ओके, या कंटिन्यू, just lucky. प्लीज कंटिन्यू। तो बिल यहाँ पर पूछता है कि ये हर एक को किसी ना किसी प्रकार का बॉटम हिट करना जरूरी है क्या? क्योंकि जब तक सेल्फ विल पूरी तरह से फेल नहीं होता है, तब तक मैं बदलने के लिए तैयार होता ही नहीं। जब तक ईगो डिफ्लेशन एट डेप्थ नहीं होती है, तब तक मैं दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं होता हूं। अगर मेरे तौर तरीके जिस प्रकार से मैं जिंदगी जी रहा हूं ये गलत दिखाई नहीं दे, तब तक मैं नए तौर तरीके सीखने के लिए तैयार होता ही नहीं हूं। ये भाव यहां पर व्यक्त करने का कोशिश कर रहे हैं। हिटिंग बॉटम, इसका मतलब यह है कि बर्दाश्तगी का अंत होना। इससे ज्यादा मैं अब नहीं सह सकता। यानी मैं शराब पिया था, वो शराब से कुछ आनंद प्राप्त करने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए, धीरे धीरे खुशी चली गई, आनंद चला गया, खाली आदत बच गई, और फिर
शराब से मिलने वाली तकलीफ शराब से मिलने वाले आनंद से कई गुना ज्यादा भी बढ़ गई। फिर भी मैं शराब के ट्रैप में से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर भी मैं अपने आप को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, मुझे पीना पड़ेगा, नहीं, मुझे पिए बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। इस अवस्था में मैं आया हुआ था और मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, देर इज नो प्रॉब्लम दैट मी एंड माई अल्कोहल कैन नॉट सॉल्व टुगेदर। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो मैं और मेरी शराब मिलकर सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो विश्वास था वो धीरे धीरे टूटते गया। हर बार वन मोर ट्राई और वन मोर फेल्योर मेरा होते गया और इस अंतिम अवस्था में आ गया कि द ओनली ट्रूथ इज दैट आई कैन नॉट हैंडल माई अल्कोहल। एक ही सच है, मैं शराब पी नहीं सकता हूं और पिया तो इसके आगे जी नहीं सकता हूं। जब ये कन्विक्शन आ गया, ये बात आ गई कि नहीं, ये शराब में अभी कुछ खुशी नहीं बची है, अभी कुछ आनंद नहीं बचा है, सिर्फ पेन ही पेन बचा हुआ है। दैट आई कंसिडर इज द पॉइंट ऑफ हिटिंग माई बॉटम, कि बस इससे ज्यादा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तभी बर्दाश्त की जब ये हद हो जाती है, तब भी जाके मैं तैयार होता। अच्छा बोलो भाई, क्या करना क्या है? रिहैब में बंद होना है, ठीक है, रिहैब में बंद कर डाले। फिर क्या, और क्या? स्पॉन्सर लेना है, चलो स्पॉन्सर। अब लिटरेचर पढ़ना है, चलो लिटरेचर पढ़ लेता हूं। कुछ भी आप जो बोलो, फर्स्ट स्टेप लिखना है, मैं फर्स्ट स्टेप लिखता हूं। पांचवी कदम किसी के साथ में लेना है, वो करने को तैयार हूं। भगवान के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है तो भी मैं अपना मन खुला रखता हूं कि किसी ना किसी उच्च शक्ति को मैं स्वीकारूंगा, तभी जाके मेरे ईगो के ऊपर का रिलायंस मेरा कम हो जाएगा। ये सभी तत्व मैं तभी स्वीकारने के लिए तैयार होता हूं व्हेन माय ओल्ड आइडियाज हैव फेल्ड कंप्लीटली। तो दोस्तों, बिल डब्ल्यू ये कहता है कि जब तक ये अंतिम घड़ी नहीं आती है, जब तक ये फाइट विथ माय ईगो ये खत्म नहीं होती है, तब तक मैं बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। और ये बदलाव लाने के लिए शराब ही अपना सबसे बड़ा सेल्समैन है। वो कहता है, अंडर द लैशेस ऑफ अल्कोहल, शराब के फटके खा खा के हमें ए की तरफ आना पड़ा है। और ये हमारा जो पागलपन या मौत वाला जो आखिरी जो सामना है, इसको हमको स्वीकारना पड़ा हुआ है। और तभी जाके हमारे मन में इतना खुला मन आ जाता है, इतना ऑनेस्टी आ जाता है कि जो कहते ना कि डूबते को तिनके का सहारा, कि जो डूब रहा है वो किसी भी तिनके को भी अपना सहारा मानने को तैयार होता है, या जो मर रहा है उसको जो भी आप सुझाव दे दो वो सुझाव सुनने के लिए तैयार होता है। इसी अवस्था में कि भाई अभी मैं इनका नहीं सुनूंगा, अभी अभी अगर मैं अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होता हूं तो मरना होगा। तो ये मरने से बेहतर है मैं अपने आप को बदलाव लाऊं। ये अवस्था जब भी रेडीनेस, ये स्टेट ऑफ रेडीनेस जब भी मेरे अंदर आती है, तभी जाके मैं कार्यक्रम लेने के लिए तैयार होता हूं। दिस प्रोग्राम दैट इंड्यूसेस अ पर्सनैलिटी चेंज, उसकी शुरुआत वो कंप्लीट सरेंडर ऑफ ओल्ड आइडियाज के यहाँ पर है। इस बात को यहाँ पर दोहराया गया है। ओवर टू यू लकी। यस, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बहुत लोगों का विषय होता है, मैं इसके ऊपर बाद में कहूंगा। कन्विक्शन एंड एज विलिंग टू लिसन एज द डाइंग कैन बी। मैं अपने आखिरी के दिनों में जब ये निर्दयी आकर्षण ने इतना मेरे को पागल कर दिया था कि मेरा सब कुछ जाता हुआ दिख रहा था, मैं चलती हुई फैक्ट्री छोड़ के आ गया, एकदम हताश निराश हो गया, पी पी के अपने नुकसानों को भूलना चाहता था। और ऐसे में मेरे को कहीं से सुनाई दिया कि कोई एक इंजेक्शन बना है कि वो इंजेक्शन लेने से तुम शराब नहीं पी सकते, अगर पी ली तो तुमको खून की उल्टी आएगी, मर जाओगे। अब ये लाइन में पढ़ता हूं तो मुझे याद आ गया, एज विलिंग टू लिसन एज द डाइंग कैन बी। मैंने वो बंदे को बोला कहाँ मिलता है? बोलता है मुंबई में पूछ, कहीं मिलता होगा। सुनी सुनाई बात थी, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है, शायद वो एंटाबीज की बात करता होगा तभी। लेकिन मैं इतना तैयार हो गया था कि मैंने सोच लिया था कि मेरे को वो इंजेक्शन ही लेना पड़ेगा। इंजेक्शन लेने के बाद पिया और मरा तो कम से कम छूट जाएगा, लेकिन विदाउट दैट आई कैन नॉट।
आई कैनॉट स्टॉप। और वो इंजेक्शन लेने के लिए मैं बंबई में फोन कर रहा था। मेरी किस्मत अच्छी कि मेरा फोन डॉक्टर जूलियट नाथवानी को लगा और उसने बुला के मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करके डिटॉक्स करके ए में भेज दिया। लेकिन हमारे मन की अवस्था वैसी हो जाती है। कई दोस्त अपने साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे नए भी हैं। मीटिंग्स में भी कई लोग हम में से जब बोलते हैं ना, शेयरिंग की बात आती है, तो भाई आप कम से कम 24 घंटा शराब से दूर होने चाहिए, इतनी अपेक्षा है। तो उसमें यह जरूरी है जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, क्योंकि कई बार ना जिंदगी में जब अलग, नॉट ए बट अलग चीजों की बात आती थी, तो मैं दोनों को करने की कोशिश करता था। मैं धर्म का पालन भी करने की कोशिश करता था, पूजा पाठ सब कुछ, लेकिन पीना भी बंद नहीं करता था। आज ये बिल की जो लाइन को हाईलाइट किया है कि प्रैक्टिसिंग इज रिमेनिंग 12 स्टेप 11 स्टेप, मतलब उन दृष्टिकोणों को स्वीकार करना, उन कृतियों पे काम करना कि जो कोई पीने वाला अल्कोहलिक जो अभी पी रहा है, वो उसका सपने में भी विचार नहीं कर सकता। वो स्टिल ड्रिंकिंग कैन ड्रीम ऑफ टेकिंग। तो इसके लिए कई बार हमारे साथ आज जो नए भाई जुड़े हुए हैं, उनके मन में कुछ ऐसा लगता होगा या कुछ प्रयत्नों की बात होगी कि व्हाई दिस इंसिस्टेंस कि बॉटम हिट करना है, सोब्राइटी अचीव करना है। तो ये इंसिस्टेंस इसके लिए दोस्त, क्योंकि बाकी 11 कदम मेरे को छुटकारा जो दिलाने वाले हैं, जो अभी भूषण ने कहा वो व्यक्तिमत्व में बदलाव लाने वाले हैं, वो पीते पीते हो नहीं सकते। पहला घोट जाते ही पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। भले 2 साल की सोब्राइटी हो, भले 5 साल की सोब्राइटी हो, 10 साल की हो, 20 की हो, 30 की हो, कोई मायने नहीं रखती हो। पहले घोट में वो जादू है कि फिर से पहले जैसा, फिर से वो पहले वाले विचार, जैसे ऐसे महसूस होता है जैसे कभी गए ही नहीं थे, वो फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये अपना 12/12 का पहला कदम, जिसको हमने बिल के खुलासे से, उसके ऐसे में से समझने की कोशिश की, कुछ अपने बिल्कुल अनुभव जो लकी, अगर जी तुमने सोचा है, मैं अभी एक थॉट मेरे मन में आया था कि अगर पूरी बीमारी देखते हो तो वो पहले कदम में है। यानी पावरलेसनेस जो है, हतबलता जो है, वो कहाँ है? तो फिजिकल एलर्जी पे मैं हतबल हूं और मेंटल ऑब्सेशन पे मैं हतबल हूं। तो पहली हाफ स्टेप जो है, वहां पर मेरी फिजिकल एलर्जी एंड मेंटल ऑब्सेशन है, जहां पर मैं हतबल हूं। और जो दूसरा हाफ जो स्टेप है, दैट माय लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल, यहां पर मेरी स्पिरिचुअल बैंकरप्सी है। तो जो मैं देखता हूं कि मेरे रिलेशनशिप्स खराब होना, मेरी आर्थिक स्थिति खराब होना, मेरा समाज के पैसा प्रतिष्ठा सब कुछ बर्बाद होना, ये अनमैनेजेबिलिटी में आता है। तो अगर पूरा बीमारी मैं देखता हूं तो वो पहले स्टेप में दिखाई देता है, मेरी पावरलेसनेस भी और मेरी अनमैनेजेबिलिटी। तो मेरा फिजिकल एलर्जी एंड मेंटल ऑब्सेशन भी और मेरी स्पिरिचुअल बैंकरप्सी भी पूरी तरह से मुझे पहले कदम में दिखाई देती है। हम्म, तो सो हमारे 10:15 बज चुके हैं, 15 मिनट बचे हुए हैं। कुछ हैंड रेस हैं अभी। चंदू, विल यू टेक ओवर? और अश्विन, कि चलो सुनते हैं। अशोक भाई ने हैंड रेस किया है। जी। यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयर इफ यू वांट। Ashok, you please unmute yourself. या आई डिड। Yes. दोस्तों, मेरा नाम अशोक है, मैं एक शराबी हूँ। हाय अशोक। हाय अशोक। हाय हाय। स्पॉन्सर लिया हुआ है, जिंदगी के टर्बुलेंस में से जा रहा हूँ। कुछ महीने पहले, मतलब मैं ये बताऊंगा कि मैं ए में दो 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 2012 में आया। अभी तक सोबर, मतलब लकी नोज इट की था मैं रिसेंटली तक। लेकिन एक ऐसा बॉम्ब मेरे घर पर गिरा, मेरे वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हो गया और मैं स्लीप हो गया। दोस्तों, मेरी 12 साल की
12.5 साल की सोबराइटी मैंने खो दी। उस दिन मैं लकी के पास बहुत रोया, बहुत रोया। लकी नोज इट। लकी, डू यू रिमेम्बर? यस आई डू। उस दिन से आज तक मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि यार मैं 90 ले सकता हूँ। हाँ, मैंने अभी सीख लिया है 90 लेना। और ये द्विधा मनस्थिति, इतने साल की मैंने बिग बुक कम से कम 10 बार पढ़ा है। उसमें से 8 बार मैंने अंडरलाइंड सेंटेंसेस को इतना खराब कर दिया, वो किताब को वो फेंक के नए किताबें खरीदी मैंने। 12/12 कम से कम 10 बार पढ़ा। लैंग्वेज ऑफ हार्ट, डॉक्टर बॉब एंड ओल्ड टाइमर्स, क्या 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 पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। लेकिन ये सब वाइफ की बीमारी की वजह से मैं खुद को रोक नहीं सकता। मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने सोबराइटी खोई है। लेकिन मैं एक एनकरेजमेंट लिया हूँ आज लकी से कि वो 10 साल की सोबराइटी हो, 5 साल की हो, 4 साल की हो, 15 साल की हो, कोई मायने नहीं रखती। आज का दिन मैं नहीं पिया हूँ। One day at a time, I am learning. Now I am 71 years old, and one day at a time I have to go for the next 29 years. ऐसा मेरा आई एम होपफुल। मजाक की बात और है। तो ठीक है दोस्तों, मैं सोबर हूँ आज के दिन, और इस मुझे बोलने की ये दी। बहुत अच्छी आज की फ्रूटफुल मीटिंग रही। बहुत अच्छे नैरेटिव्स जो है मेरे, बहुत अच्छी बातें जो मैं पुराने जमाने में मैं खुद लोगों को पढ़ाता था, बताता था, भागता था 12 स्टेप करने के लिए, छोटे से आदमी से बड़े आदमी के घर तक जाता था, लोगों को समझाता था बिग बुक क्या है। आज मुझे उसका पूरा मतलब अच्छा लगा ये सब सुनकर। थैंक यू सो मच। भूषण इससे जी, लकी जी, ये प्रदीप फ्रॉम पुणे इज हैविंग सम प्रॉब्लम। अभी भी अल्कोहल का कुछ प्रॉब्लम है। प्रदीप। आपका नंबर डाल दीजिए प्रदीप जी। जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में अपने नंबर्स भी डालिए, सो दैट वी कैन कांटेक्ट यू आफ्टरवर्ड्स। और दूसरा, ये एक बात जो है मेरे जिंदगी की भी, इतनी ही मैं बोलूंगा कि जो शब्द है, एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस कैन रिमूव इट फ्रॉम अस। और प्रोविडेंस इज आई एम गेटिंग अल्कोहलिक्स एनोनिमस। कुछ फिर सवाल है तो ले लेते हैं अश्विन। हाँ जी, और एक हाँ, हैंड रेस था। सवाल ले लेते हैं। हाँ, आनंद। आनंद, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आनंद, और थोड़ा शॉर्ट और प्रिसाइज। Good evening, everyone. Hi, I'm an alcoholic. My name is Anand. हाय आनंद। Hi, Lucky. मेरा प्रश्न ये था कि अभी जो लास्ट शेयर थे उनके अनुभव के साथ ही रिलेटेड मेरा भी अनुभव है। मैं भूषण से या आपसे, दोनों में से किसी से भी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे द नेक्स्ट फ्रंटियर जो आर्टिकल लिखा था बिल डब्ल्यू ने, राइट, इमोशनल सोब्राइटी के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब ए में आते आते काफी समय बिता लेते हैं, तो किन्हीं जगहों पे हम लोग इमोशनली स्टक हो जाते हैं। उसके बारे में अगर कुछ प्रकाश डाले तो। आनंद, आज की जो मीटिंग है ना, ये अपनी 12/12 की स्टडी का हमने फॉर्मेट बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि आज हम बाकी लोगों के भी हैंड रेस दें तो ये 12/12 में ही टिकेंगे, क्योंकि समय भी कम बचा हुआ है। और तू लखनऊ की मीटिंग में बुला लेना मेरे को, भूषण को। वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट फ्रंटियर। ठीक है, ओके, थैंक यू। या विठल, विठल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। विठल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विठल है, मैं एक शराबी हूँ। हाय विठल। हाँ,
भाई खाली यही पूछना चाहता था कि हमारा जो ये हमारे रिवाइवर समूह ने जो एक सेल्फ रियलाइजेशन का एक क्वेश्चन ईयर बनाया था, और जो हम हर बार करते हैं वो फर्स्ट स्टेप से ही अगर संबंधित है, तो क्या हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा? इतना ही पूछना था, बाकी कुछ नहीं। सो थैंक यू विठल रिमाइंडिंग अस। तो नॉर्मली जब भी हम लोग मीटिंग इस प्रकार की मीटिंग ए मीटिंग करते हैं, तो हम लोग सिर्फ कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर का ही जिक्र करते हैं, और कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर के बारे में ही हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन जब भी कोई भी चीज एक आध ग्रुप ने या कुछ मेंबरों ने अपने भलाई के लिए की हुई है, तो उसका लाभ औरों को भी मिलने में कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, हम लोगों ने रिवाइवर ग्रुप के हम लोग वर्कशॉप्स के लिए, स्टेप वर्कशॉप्स के लिए जाते थे, और वहां पर सोबराइटी में आने वाली मोस्ट कॉमन और फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने लिस्ट किया, और उसका एक लगभग 250 पौने 300 सवालों का एक लिस्ट बनाया हुआ है। तो जिससे मेरी अस्त व्यस्तताओं को मैं पूरी तरह से समझ लूं, ऐसा एक क्वेश्चनेयर हम लोगों ने बनाया हुआ है। ऑब्वियसली ये कोई कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर नहीं है या ए के किसी किताब में से लिया नहीं है, बल्कि ए मेंबरों ने ही अपने अनुभवों से बनाए हुए ये सवाल है। तो अगर किसी को दिलचस्पी होगी ये अपना पहला कदम लिखित रूप में लेने के लिए और थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में करने के हेतु, तो आप आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं, और विठल के पास में उसकी पीडीएफ है। विठल उसकी हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों पीडीएफ उनके पास में है। जो आप चाहे वो पीडीएफ आपको पर्सनली वो शेयर कर सकते हैं। विठल का नंबर चैट बॉक्स में डाल दो। विठल, अगर नहीं डाल सकते तो अश्विन जी आप डाल दीजिए। जी यस। जी। और सनी, भूषण, वाइल ऑन दिस, मुझे याद है विनायक इनिशियल स्पॉन्सर ने मुझे कहा था तेरा अल्कोहलिज्म लिख के निकाल। तो मैंने पूछा था कैसा लिखना है, तो बोलता है अल्कोहलिज्म को 3 भाग में डिवाइड कर, मेंटल ऑब्सेशन, एलर्जी और बैंक्रप्सी। और जितने तेरे को तेरे अनुभवों में से दिखते हैं ना मेंटल ऑब्सेशन के केस, कि जहां पे तुझे कुछ और करना चाहिए था लेकिन तेरा मन खींच के तुझे शराब की तरफ ले जा रहा था, वो एपिसोड लिखते जा। सो दैट्स अनदर वे ऑफ हैविंग, बोलते हैं ना, फर्स्ट स्टेप को गहराई तक जाके पावरलेसनेस समझने में। अगर आप ऐसे भी अनुभव लिखना चाहो कि कहाँ कहाँ मेरा मानसिक आकर्षण इतना बढ़ गया कि दूसरे आकर्षण कम होते गए, कहाँ कहाँ मेरी क्रेविंग ने मेरे को इच्छा के विरुद्ध पीने को लगाया, और कहाँ कहाँ मेरा नैतिक अदन पदन होता गया। तो यस सनी, और मैंने मेरा नंबर डाल दिया है। प्रदीप, आई विल कांटेक्ट यू, और जिनको भी ये क्वेश्चनरी चाहिए है वो कृपया मुझे मैसेज कर दे, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। जी सनी। सनी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सनी, यस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सन्नी मैक शराबी। सर, मेरा एक ना क्वेश्चन था कि मैं ना अभी रिसेंटली ना अपना यहाँ ग्रुप में ना वो था सेक्रेटरी, तो ग्रुप में ना मिनट्स को लेके ना एक बवाल छिड़ गया। बवाल यूं छिड़ गया, हमारे ट्रस्टी साहब बैठे थे उसमें, तो मैंने उसमें लिख दिया, हमारे जो चेयर करी थी उन्होंने, तो मैंने उसमें लिख दिया कि जो चेयरमैन थे वो ट्रस्टी साहब थे, जो भी नाम था उनका। तो उसको लेके बवाल छिड़ गया सर। मेरे को निकालने के लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या नहीं किया। आजकल इतने मैसेज ऐसे ऐसे बोलते हैं सर रूठली कि ना चाहते हुए ना मन करता है शराब पी लूं। तो 2-4 भाइयों कहते हैं नहीं नहीं ऐसा चलता रहेगा। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या गलती थी। पहले तो कोई सेक्रेटरी के लिए खड़ा नहीं होगा, अगर मैं हुआ तो मेरे को ऐसे ऐसे करके वो निकालना चाहते हैं। मैंने सच्ची तो लिखा था सर जी, और उस वोटिंग में ये जब हुई थी, फोरम वोटिंग इसके में लिए से नहीं 14 है। में से ये 12 वोट फोरम बने इसके थे। लिए नहीं है। ठीक है जी। अपन बात करेंगे सनी। मेरा नंबर है ना तेरे पास, मेरा भूषण का या अश्विन का? भूषण भाई, हाँ मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सन्नी आपसे फर्स्ट टाइम मिला था दिल्ली के उसमें सर्विस बुक में, आपको फोन करता हूँ सर जी। हाँ हाँ, श्योर श्योर, ये हम लोग पर्सन टू पर्सन बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे। श्याम, श्याम, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, एंड
की प्रिसाइज। और कोशिश कीजिए कि आज जो हमारा फर्स्ट स्टेप हमने 12x12 से लिया है उसी पे सवाल पूछें। जी जी। सर अभिश्याम, मुझे मेरी एक सवाल थी। आई एम न्यू कमर, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर सर्विस टू जो भी सर्विस। मेरा ये सवाल ये था कि मैंने फर्स्ट स्टेप में ना, मुझे मेरे स्पॉन्सर ने कहा था कि पावर और पावरलेस लिखने के लिए, और सर मैंने जितने भी पावरलेस लिखा उसमें मतलब आई एम पावरलेस अबाउट माई रूटीन वेकअप, तो वहां पर सारे स्पॉन्सर ने मुझे कहा कि जितने भी पावरलेस लिखा है ना ये सारा गलत लिखा। यू आर पावरफुल ओवर एक्सरसाइज, यू आर पावरफुल टू वेक। और पावरलेस में लिखवाया मेरा वाइफ, मेरे वर्कर, जहाँ पर मेरे एम्प्लॉय, इन सब पे। और मुझे लगता है कि मतलब मैं क्यों पावरलेस हूँ, मतलब मेरा वर्कर है भाई, पैसे दे रहा हूँ, मेरी वाइफ है, उसको मतलब वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि पावरलेस मैं उठ नहीं पा रहा हूँ तो पावरलेस है, तो वो कह रहे कौन भगवान थोड़ी ना रोक रहा तुम उठने के लिए, तुम उठो। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई, तो थोड़ा क्लियर कर देंगे तो हेल्पफुल रहेगा। सो मुझे याद है जब भी नया नया मैं था, तो एक हमारे स्पिरिचुअल व्यक्ति है, उन्होंने, मैंने कहा था कि ये जो पावरलेसनेस का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझाने के हेतु उन्होंने बोला था कि पुशन, अपने सांस को 2 मिनट पकड़ के रखो। तो ऑब्वियसली 2 पूरे मिनट सांस बंद करके बैठना संभव नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि देख कैसा है, देख अपने सांस के ऊपर भी हमारा ताकत नहीं चलता है, हमारा कंट्रोल नहीं चलता है, और हम सोचते हैं कि हमारे विचारों से पूरी दुनिया चलती है। और वो हमेशा कहते थे कि सेरेनिटी जो प्रेयर है, ये सेरेनिटी प्रेयर ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है टू नो वेयर वी आर पावरलेस एंड वेयर वी हैव द पावर। तो जो भी चीजें मैं बदल नहीं सकता, जिसमें मेरे बीवी का मेरे प्रति विचार हो, या मेरे दोस्तों का मेरे प्रति बर्ताव हो, या जो भी लोगों के मन में मेरे प्रति चल रहा हो, ये जो भी चीज मैं बदल नहीं सकता हूं, उनके ऊपर, सबके ऊपर मैं पावरलेस हूं। और उनको मुझे स्वीकारना है, जैसे है वैसे प्रसन्नता के साथ में स्वीकारना है, सेरेनिटी के साथ में स्वीकारना है। और पावर मेरे पास किसमें है? जो चीजें मैं बदल सकता हूँ। बदल कौन सी चीजें सकता हूँ? मैं अपने बारे में ही चीजें बदल सकता हूँ। मेरे उठने का समय, मेरा हाइजीन, मेरे विचार, मेरा बिहेवियर। तो मेरी जो चीजें हैं उनके ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है, जिनको मैं बदल सकता हूँ। तो आई कैन लिव अ बेटर लाइफ, मैं बेटर डिसिप्लिन लाइफ जी सकता हूँ। मैं आई कैन चूज नॉट टू ड्रिंक, आई कैन चूज टू प्रे, आई कैन चूज टू मेडिटेट। तो ये जो चीजें हैं जो मैं बदलाव ला सकता हूँ, इनके ऊपर मेरे पास पावर है। और हमारी सेरेनिटी प्रेयर लास्ट में विजडम की बात करती है कि शांतता से अगर सोचोगे तो बाहर की कोई भी चीज, अपने शरीर को प्यास भी लगती है तो हम अपने आप को चुप नहीं करा सकते हैं। फूड भी लगता है तो अपना शरीर भी हमारे पावर में नहीं है। ऐसी कोई भी चीज बाहर, मेरे विचारों के बाहर, मेरे कृति के बाहर है जो मेरे पावर में नहीं है। इसके लिए आई एम पावरलेस ओवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड द ओनली पावर आई हैव इज माई ऑन माई एक्शन एंड माई बिहेवियर एंड माई थॉट्स। तो इस प्रकार से मुझे समझाया गया था जब मैं नया था। तो आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सर, थैंक यू। Yes, Oblesh, Bangalore. Unmute yourself. Good evening, friends. I am an alcoholic. I am Oblesh from Bangalore. एक स्पीकर सर ने उनकी वाइफ को कैंसर हुआ करको उन्हें शेयर करते थे। मैं 2022 जून में मुझे कैंसर पॉजिटिव हुआ। 7 साल का सोवरिटी था मेरे को, लेकिन पहले मेरे को बहुत डर लगा। बाद में मेरे दिमाग में आए तो मेरा स्पॉन्सर को फोन किया, ऐसा हुआ करके। वो 700 किलोमीटर दूर है बैंगलोर से।
उन्हें बोला है, कौन बोला ले, नहीं सर ऐसा रिपोर्ट आपको है, पॉजिटिव है, भेजा, मैं देख के शाम को बात करता हूँ है। लेकिन शाम को 9 बजे को फोन करने में उन्हें स्टार्टिंग फेज है, आओ मैं करके भेजता हूँ तेरे को, नहीं सर मैं कर लेता था। लेकिन उस समय मैं 4 स्टेप लिखता था मैं, मुझे करते 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 एक डर लग गया मेरे को, क्या कहीं मैं 4 स्टेप लिख ना पाऊँ करके। मैं मेरे मेरे स्पॉन्सर को फोन किया, सर ऐसा डर लग रहा है मेरे को, लेकिन ले रहा हूँ 37 रेडिएशन, 7 कीमो लिया मैं, ले रहा हूँ जा रहा हूँ, एवरी कीमो एवरी रेडिएशन प्रेयर ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन वो डर आ गया मेरे को, लिखता हूँ कि नहीं की। बाद में उन्हें बोला, तू कहाँ है, तू लिख बस, मैं वहीं आके तुझे तेरे साथ मैं स्टेप कर लूंगा। ओके, मुझे फिर हिम्मत आ गया, मैं लिखूंगा, मैं लिख के जरूर करूंगा करके। एक एक मेरे बाजू वाले एक औरत है, मैं पीने के टाइम पे उसको भी गाली दिया था कहते, उन्हें बोला नहीं तुम्हें पीने के टाइम को ऐसा कहा, मैं उसके माफी मांगा। वो औरत मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, अगर तुम्हें पीते समय ऐसा कैंसर आ गए आते तो तुम्हें क्या करते थे। मैं सिंपल से बोला, ये इसी बात पे मैं एक ये लेके ज्यादा ज्यादा पी के जल्दी मर जाता था मैं, इसलिए क्या वो बोल दिया, नहीं 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसा बात नहीं, तुम्हें अब अच्छे हो तुम्हें करते रहो। लेकिन मैं डिपेंड ओबलेश, अपन प्रोग्राम में था। थोड़ा टाइम टाइम रिस्ट्रेन थैंक यू है, सर। थोड़ा सा शॉर्ट, हाँ शॉर्ट रखिए थोड़ा ओके सर, प्लीज। ओके सर। लेकिन वो मैं ये 12 स्टेप एंड माय स्पॉन्सर मैं मुझे हिम्मत दी, इसलिए मैं सबको थैंक करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। ओबलेश, थैंक यू वेरी मच। तारा, ओ- ओबलेश, ओबलेश भाई आपका नंबर डालो ना प्लीज, चैट बॉक्स में मैं आपसे बात करूंगा। ओबलेश भाई प्लीज चैट बॉक्स में। ओके तारा, ओबलेश जी आपका नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तारा, नमस्कार नमस्कार भाइयों, मेरा नाम तारा दत्त, मैं एक शराबी हूँ। सर जो आपने अभी लक्की सर और पूसन सर ने जो समझाया स्टेप 1 के ऊपर जो बताया है, वो सब कुछ पूरा समझ में आ गया है सर। लेकिन एक सवाल यह है कि मतलब मिलता जुलता मेरा भी कहानी बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लगभग 90-95% ऐसा ही हुआ है। तो इस पे कुछ लिखना भी है क्या, स्टेप 4 जो 1 से है उसके लिए भी कुछ लिखना है क्या? और दूसरा सवाल यह है ना कि जब से मैं आप लोगों के बीच में आया, जुड़ा मैं आप लोगों के साथ में, तो पीने का ख्याल तो अभी तक नहीं आया। आज तक कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पी लूंगा। बहुत कुछ हुआ ऊपर नीचे, ऐसा होते रहता है, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया। लेकिन सपना बहुत ज्यादा आता है, सपना जो है ना, सपने में ही मैं मतलब पी लेता हूँ और बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत डर जाता हूँ मैं सपने में ही। तो इससे बात भी किया मैंने, बहुत सारे सीनियर मेंबर से बहुत बार बात किया, समझाया भी, लेकिन वो बीच बीच में ऐसे आते रहता है सपना जो है। तो प्लीज इस पे थोड़ा। तारा भाई, मेरे को लगभग 7 साल तक पीने के सपने आते थे। और मैंने जब भी मेरे स्पॉन्सर के साथ में ये बात शेयर की थी कि मेरे को बार बार पीने के सपने आ रहे हैं, इसका मतलब मैं पी जाऊंगा क्या। तो उन्होंने एक सवाल मुझे पूछा कि जब भी तू शराब पी रहा है सपने में, तभी तू डर के उठता है कि तू पार्टी करके खुशी में उठता है। मैं बोला, मैं ज्यादातर डर के ही उठता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ओ शिट, मैं इतना समय से नहीं पिया और मैं पी गया, अभी क्या होगा, यही ख्याल से। बोलते हैं अगर इस विचार से तू उठता है तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब तेरा सबकॉन्शियस भी ये सोच रहा है कि तूने पीना नहीं है। इसके बावजूद तेरे को वो पीने के सपने, तो बोलते तेरे को तो बेवड़े को तो दारू के सपने आएंगे, उसको छाछ के सपने तो आएंगे नहीं। तो सपने तो तेरे को आएंगे, लेकिन उससे जो डर लगता है दैट इज हेल्दी। सो अगर आपको टेंशन हो रहा है, अरे बाप रे मेरे को सपना आया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो आप सही ट्रैक पर हो। शराब के ऊपर हमने दिलो जान से प्यार किया है, तो शायद सपने में तो आएगी वो, लेकिन समय न को, पीने की कृति जी जी। हमारे मन के सबकॉन्शियस में अपने आप को तैयार करना है।
समय को देखते हुए सिर्फ 2 हैंड्स है, उनको ही लेंगे और उसके बाद में नहीं और लेंगे उसके कोई बाद हम हैंड। मीटिंग एंड करें। ओके। और तारा भाई, वो जो क्वेश्चनरी है फर्स्ट स्टेप पे बनी हुई, वो जिनको भी चाहिए, मेरा नंबर है, मुझे मैसेज कीजिए, मैं भेज दूंगा। निशांत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाय, मैं राकेश शराबी। अ, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो पहला अपना स्टेप जिसमें हम बोलते हैं पावरलेसनेस और अनमैनेजेबिलिटी, तो बिल साहब ने या किसी ने भी इसको 2 स्टेप में नहीं डाला, तो वेदर दिस पावरलेसनेस और अनमैनेजेबिलिटी गोज हैंड इन हैंड, और कि ये हमको एक समान ही ट्रीट करना है, मतलब कि मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करूं, अलग अलग काम करूं, कि एक साथ ही काम करूं? तो पावरलेसनेस के ऊपर तो काम होता नहीं है, काम तो अनमैनेजेबिलिटी पे ही होता है। तो हमारा जो 12 स्टेप का प्रोग्राम है, उससे मेरी शराब के प्रति जो प्यास है वो प्यास जाने वाली नहीं है। वो तो वो बुझ ढक्कन तो मुझे ही बंद करके रख देना है। मेरी प्यास ठीक नहीं होने वाली है, मेरा ऑब्सेशन भी जाने वाला नहीं है। इसके लिए यानी मेरा बीमारी भरे फिजिकल एंड मेंटल है, मेरा जो सॉल्यूशन है वो स्पिरिचुअल है। तो मेरे को जो काम करना है वो मेरी अस्त व्यस्तताओं के ऊपर काम करना है। तो जब ये अस्त व्यस्तता से सुव्यवस्था की तरफ मेरा जिंदगी बढ़ेगा, तभी ऑटोमेटिकली मेरे को पीने की इच्छा नहीं होगी, मेरी मैल एडजस्टमेंट नहीं रहेगी, और मेरे की पीने की इच्छा निकल गई तो फिर मेरी फिजिकल एलर्जी भी एक्टिवेट नहीं होगी। तो इलाज ये इस प्रकार से काम करता है। बीमारी का शरीर को बंद रखने का काम से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे जब भी कभी भी मेरा मन इच्छा करेगा और पी लेगा तो मेरा शरीर वापस बीमार तो बीमार ही रह जाएगा, उनका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अस्त व्यस्तताओं पे ही सिर्फ काम हो सकता है। जी भूषण। भूषण जी आपको। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूषण है, मैं शराबी हूँ, शराब नहीं पिए। मेरा केवल एक सजेशन था कि इंडिविजुअल भेजने से अच्छा जो पीडीएफ है आपका, अगर वो सिर्फ ग्रुप में डाल दे, रिवाइवल ग्रुप जो बनाया है अपन ने, अगर उसमें कर दे तो सभी को मिल जाएगा, जिसको चाहिए का वो ले लेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। राइट राइट, वी विल, हम लोग वहां पे डाल देंगे, जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच चंदू। ओके। दोस्तों धन्यवाद। हम सेनिटी प्रेयर लेते हैं वी वर्जन पे और मीटिंग समाप्त करते हैं, और हम फिर से मिलेंगे अगले शुक्रवार को रात को 9 बजे इसी मीटिंग पर। जी, ग्रुप में हम लिंक भी डाल देंगे और वो ये भी दे देंगे, क्वेश्चनरी भी दे देंगे। ओके। रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग, यस।